Good afternoon, all. Today we are going to study about the basic introduction of environmental studies. When we talk about environmental studies, so first the thing comes into the mind is the nature, human being, and the multidisciplinary nature of environmental studies. So this is the first unit of environmental studies. It will give us a brief idea about what is environmental studies, what is definition, what is the scope of this, what is the like how it is multidisciplinary subject, and what is the history of environmental studies, which are the institutions which are involved in environment for study of environment, and who are the people who work for for conservation of environment, who are the important people in India. Myself Kundan Deval. So I'm going to teach you today. So first of all, the definition, scope, and importance of environmental studies. Environment is the physical and biotic habitat that is surrounded us. Is deal with the every issue that affect the human being or a living organism. When we talk about environmental studies, it essentially a multidisciplinary approach. So, what is multidisciplinary? Multidisciplinary, like which include lot of disciplines. Like there are different disciplines, streams of when we study science, social science. There are different streams. So, multidisciplinary is that which include lot of uh, stream inside that subject we call as multidisciplinary approach. uh, so uh, so so it's include the natural world and the human impact on the natural world. So so when we we need nowadays we need environmental education. So what environmental education is include when we are capable of conceptualizing and we have a detailed understanding of environmental problems, and we are able to analyze the problem, and we are able to think about the solution and what is the ultimate output. So this is the environmental education. Uh, so, so environmental studies deal with every issue that affect a organism. Its components include like the as I told you, it's a multidisciplinary subject. So there are biology, geology, chemistry, physics, engineering, sociology, health, anthropology, economics, statistics, computer, and philosophy. These are the different disciplines, and environmental studies is comprised of all these disciplines. So, what is the scope of environmental studies? When we talk about environment, so first we need to know the definition. Now we are going to know what is the scope of environmental studies. So, environmental studies, like it's include everything surrounded by us, everything. So that is a need of a human being and the effect of human being on the natural system. So everything, the forest, the river, the every element that included in environment studies. What we need ultimately, we need to respect all these resources because they fulfill all of our needs. There are the two type of resources. One is renewable resources, other is non-renewable resources. So non-renewable resources are which resources they can't be made again. If we use it once, then it can't be made again. These are the, and if we extract these resources, able the that can't be available for the future generation. But the renewable resources are which can be regenerated,
but like timber, like water. But it's again, we need to use that also sustainably. We need to use that in a limited amount, so that use the amount of use and the amount of reservation should be equal. So like, so if someone want to change, like if someone want me to talk more in Hindi or English or whatever, you guys can message me, okay? You can message in the chat, like if you want if the class should run slow, or you want to change my language, you want Hindi and English mix, then you can message me. So we are talking about the resources. So there are natural renewable resources and non-renewable resources. So so we need to use the renewable resources also at the speed of we use, that can be, that should be equal to the speed of regeneration. So so there is one activity for the students. So you should after the class ended, you should take anything like a full bucket of water, any item of food, like what you eat, anything like you eat a pizza or anything, any item you can take, and you can think about like how this item came to you, what are the components used in this producing this item, and what will be the ultimate waste out of this item. So you guys can do that. So then you need to think like what are the resources used in this item. If you are using something, so what are the raw material and resources used in item, and how many of these are renewable, like that can be made again if once it used, है ना? So how many of these elements are renewable, and how many of these elements are non-renewable, and how you can reduce the waste, and how can reduce the use of it, like how can you use it sustainably. So the resources, I like a tetra pack of juice. Okay, whatever resources we are using, it's like a tetra pack of a juice. So what is the value of resources and where does it originate is? So like we have four things for every resource, like what, where, how, and who. So, what is the value of resources? Where does it originated? Who use the resources? Okay, and where it's being overused or misused, and who is responsible for the proper use of resources, and how we can help to conserve it and prevent it, the overuse or the unsustainable use. So, what is the importance of environmental studies? It's not a single subject as we talk. It's a it's a it's a multidisciplinary subject. So there is a lot of things which include in environmental studies. So everything surrounded by us is included in environmental studies. So there are a lot of things like plastic waste, food, solid waste, byproduct, है ना? There is air pollution which leads to respiratory problem, water pollution, and many pollutants. Everything comes into the environment. When we study environment, we study the cause of the pollution, the effect, and what is the prevention, like how we can prevent and how we can use the resources sustainably. So, this is the activity two again. After the class will finish, you should also think of the all the things that you use in a day. So, list the you know activities, then identify what are the resources you use for that activities. Like
for eating, for playing, for if you go for a walk, if you go for cycling, if you go for a car ride. So what are the resources you using? What are the, waste is generating by this, and how you can prevent the waste, and if there are the things you can reuse it. Like if you are using a single use plastic, so you can't reuse it. If you are using something made of a wooden, you can use it, and it's biodegradable also. So you should make a list and think about these things. So you can also make a list of the things that damage the environmental due to your actions. When we will make a list, then we will uh, came to know. Like if you can make a list of things you use in your daily life, like pen, bags, books, table, chair, everything. And you can make a list and you can see what is, if it is made of plastic, so you can tick like yes or no, and then you can see, can you replace it with a non-plastic thing. Like some items are like that you can't replace them, but some items are like that you can easily replace them with non-plastic items. So uh, so when we talk about plastic thing, there are plastic bag, plastic ball pen, so you can made a list of this, like how many plastic items are you using. Then you can make a list of how much of the fossil fuel you are using in your daily life, like petrol, diesel, natural gas. When you take a auto ride, when you take a car ride, when you go somewhere, one place to another place, what mode of transportation you are using and which fossil fuel you are using, and how the fossil fuel is affecting the environment. You can also make a list like how much water you use and how much water you really need for your survival. You can make a list of food items, like which kind of food items you are using and how much waste is generating out of that. You can make a list of paper, like how much paper you is using, how it is coming from. You can make a list of electrical energy as well. So when we talk about environment, we should talk about the, you know, what is the value of environment. So we get lot of things from environment. There is a direct and indirect value of environment. So when we talk about direct value, so there is productive value, like how much you are getting, like environment से हमें क्या क्या चीजें हैं जो एज अ प्रोडक्ट मिल रही हैं. सो प्रोडक्ट के रूप में कि जो भी नई रिसर्च हो रही है, दैट इज वी आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट. ओके. एडवांसमेंट इन फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, plants. Okay. Value of environment, when we talk about like value of environment, so one is the productive value, another one is like we are getting directly it, but another one is the aesthetic and recreational value, like we are not getting in the form of money. like हमें उससे डायरेक्टली, जैसे कि कोई वुड या डायरेक्टली वुड नहीं मिल रहा, डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल नहीं मिल रहा, डायरेक्टली सामान नहीं मिल रहा, लेकिन वी आर गेटिंग ए रिक्रिएशनल वैल्यू. जैसे कि हम जंगल में जाते हैं, तो हमें वहां पे जाके देख के अच्छा लगता है, हमारा माइंड रिफ्रेश होता है. सो दैट इज द एस्थेटिक, लाइक उसको देखने से हमें जो एक अच्छा फील हो रहा है, हमें जो एक एनर्जी फील हो रही है. सो दैट इज द एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल. लाइक चिल्ड्रन है, वो पार्क में खेलते हैं, so they are not getting any direct money out of that, but we are getting a place where can our children can play, where we can sit, where we can see the nature, where we can feel refreshed.
Another one is the option value of the nature. So when we think about the optional value of the nature, so we think about how many resources we are using और उसका क्या impact हो रहा है, adverse impact हो रहा है environment पे, and how we can use the resources sustainability. So there is a lot of need of public awareness. So when because environment is giving us everything, like environment, so there are the products who are globally used. So we call it as a global value or global product of environment. Like everyone is using oxygen, everyone is using in like air, everyone is using mountains resources. So it's like fossil fuel, it's everyone is using. Then the regional resources like the forest in the region and other things. Then there are the local resources, the local people are using out of them, like they are extracting some fuel wood, they are extracting livelihood things. So it's like that. So to all of the things come from environment. So to conserve the environment, we need the public awareness. Sometimes we feel that everything should be must be done by the government, but it's not true all the time. Everything, because everything is not possible. The government can't do everything. Yeah, government should employ the policies, implement the policies which are good for environment. They should encourages the fuel that is environment friendly like CNG. They should increase the products who are environment friendly. But the public awareness is very much important and equally important. So how the public awareness can be done? By newspaper, TV, radio, everything. Okay. So so when we study environment, it's not only we study in it's in book. We need to think about how we can conserve the environment, and we need to do some small habits in our daily life, छोटी छोटी आदतें जिनसे कि environment को हम conserve कर सकते हैं. तो उसमें छोटी छोटी आदतें होती है, एंड एवरीवन शुड डू दैट. सो और बहुत से आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, सम स्टूडेंट गेट इंटरेस्ट इन फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट. सो उसके लिए यू कैन ज्वाइन अ ग्रुप जो कि मतलब कि इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करता है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड फंड है नेचर का, BHNS है, द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए. तो आप लोगों को एज ए वॉलेंटियर ये सब ऑनलाइन अवेलेबल होता है, यू शुड ज्वाइन दैट, है ना. आपको जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़पेपर है, आर्टिकल्स है, वो पढ़ने चाहिए. कोई अगर आपके आसपास कोई लोकल मूवमेंट होता है, जैसे कि एक एरिया में हम ट्री प्लांट कर रहे हैं या सफाई कर रहे हैं, वो भी आपको ज्वाइन करने चाहिए, है ना. हम जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे 3R का एक सिद्धांत होता है कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. कि हम कम से कम यूज करें, रिड्यूस करें हमारा जो यूज है इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का. अगर हो सके तो उसको रीयूज करें और उसको रिसाइकिल करें रीयूज करने के बाद में. आप अपने पास आसपास एक नेशनल पार्क या सेंचुरी को विजिट कर सकते हैं. देन यू गेट टू नो कि इन्वायरमेंट का रियल वैल्यू क्या है, जब आप उसको एज ए एक इन्वायरमेंटल साइंसेज के स्टूडेंट की तरह देखोगे. सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक how what is the scope of environment, what is definition and how it works. So now we're going to talk about which are the institutions who is important for the environment. So, what are the institutions? So, in India, there are lot of institutions who work for the conservation of environment or which are important for environment. So, there are two type of institution for environment. Okay, one is governmental organization and another one is non-governmental.
organizations. So when we talk about governmental organizations like the Botanical Survey of India, the Geological Survey of India, which are associated with government, like the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, MOEFCC. So it's are the government organization which work for the environment. There are non-government organizations which are the NGOs, the societies who work for the conservation of environment. So government organizations are like Botanical Survey, Geological Survey, and the MOEF, and these are the sites. Okay, so Botanical Survey is important for the like the related to plants, the conservation of plant, the identification of plants, and it is in Calcutta or it's established in 1890. So Geological Survey of India, it's established in 1961. It is in Calcutta. Okay, and it has 16 regional centers in different places. When we talk about non-governmental organization, there are the non-government organization like BNHS, WWF, CSE, CE, BVR, UKSN, Club, Kalprivix, and SciCon, WII, MCBT. So we will study in the detail all the like BNHS is Bombay Natural History Society, that is in Bombay. ठीक है? It's deal about the wildlife, the natural resources, study, research and policy making. WWF India, it is worldwide fund और इसका जो इंडिया का सेंटर है that is in New Delhi. It's deal with the study of wildlife, है ना, study of nature and the awareness how we can conserve the wildlife and natural resources. So you can connect with WWF as a volunteer also. There is a option you can you know see the site online. आप online जाके WWF की साइट देख सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कि इसमें आप किस तरह से एज ए वॉलंटियर इससे कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट सम वर्क अपॉर्चुनिटी आल्सो देयर एज ए इंटर्न बिकॉज जो यंग लोग होते हैं उनको वो काफी प्रमोट करते हैं काम करने के लिए एज ए वॉलंटियर. उसी से तो हमारी सोसाइटी में फिर अवेयरनेस आएगी. सो अनदर non-governmental organization is CSE, Center for Science and Environment, that is also in New Delhi. Then CPR, EEC. So it is Environmental Education Center. It is in Chennai. So it's deal in the environmental education. लोगों में environment के conservation के लिए awareness फैलाने के लिए environmental education को लाने पढ़ाने के लिए. सी सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद में है ये. देन भारती विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज इन पुणे. दैट इज अ पार्ट ऑफ भारती विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी. इसमें एनवायरमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे डिप्लोमास, पीएचडी, मास्टर्स डिग्री ये सब करवाए जाते हैं. देन यूकेएसएन उत्तराखंड सेवा निधि, ये अल्मोड़ा में है, ये भी इन्वायरमेंट के लिए काम करता है. देन क्लब परीक्षा, ये पुणे में है, एक एनजीओ है जो कि बहुत सारे जैसे इन्वायरमेंट के एजुकेशन, अवेयरनेस, रिसर्च के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, डायरेक्ट एक्शन के लिए, इन सब के लिए, लिटिगेशन के लिए काम करता है.
और इसी ने अपना जो इंडिया का नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान 2003 में था, वो बनाया था। देन दिस इज सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। तो एक सलीम अली एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है बर्ड्स के ऊपर, तो उनके नाम पे ये सेंटर बना हुआ है साइकॉन कोयम्बटूर में, जिसमें कि ऑर्निथोलॉजी मतलब जो एक ब्रांच जिसमें बर्ड पे स्टडी किया जाता है एंड नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद में WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में, ये गवर्नमेंट एसोसिएटेड बॉडीज है। फिर है NCBT मद्रास में है, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट जो कि चेन्नई में है। So these were the institutes who deal in for the conservation of environment. Now we're going to talk about the people in environment. So now we going to know about who are the people in environment or environmental conservation. So इंडिया में कौन कौन इम्पोर्टेंट लोग हैं जिन्होंने एनवायरमेंट कंजर्वेशन या एनवायरमेंट के क्षेत्र में काम किया है। सो इसमें बहुत वेल नोन लोग हैं जो कि एनवायरमेंट के क्षेत्र में जिन्होंने काफी काम किया है। तो इसमें कौन कौन लोग हैं? सो फॉलोइंग दीज आर द पीपल हु आर इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन। इन्वायरमेंटलिस्ट है, लीगल एक्सपर्ट है जिन्होंने इन्वायरमेंट लॉज बनाए हैं, एजुकेशनलिस्ट है जो कि इन्वायरमेंट एजुकेशन के लिए जिन्होंने काम किया है, और जर्नलिस्ट है जिन्होंने अवेयरनेस इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए काम किया है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। तो जब भी हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी जो थे वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर थे देश के। तो इन्होंने इंदिरा गांधी जी ने एक एज ए प्राइम मिनिस्टर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। कैसे? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया 1972 में। तो उसके बाद में क्या हुआ कि इंडिया में एक वाइल्ड लाइफ के प्रति, फॉरेस्ट के प्रति एक जागरूकता हुई। तो इंदिरा गांधी जी गई थी स्टॉकहोम कन्वेंशन में, तो उन्होंने वहां पे देखा कि अदर कंट्रीज में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज का एकदम से जो इंडस्ट्रियल एरा था 17 का, उसके बाद में क्या हुआ कि एकदम से बहुत सारी बूम आई इंडस्ट्री, तो उससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होने लगी, जंगलों की कटाई होने लगी। तो उसके बाद में इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की एक सडन नीड महसूस हुई। तो हमारी कंट्री में भी कि भाई आगे के लिए कैसे सेव करें, हमारे पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे उस वक्त। तो आगे के लिए उन्होंने एक आगे की दृष्टि से देखते हुए और इन्वायरमेंट के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, और सबसे पहले 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। उसके बाद में तो उन्होंने काफी चीजें करी। अपना जो उनका इंदिरा गांधी का जो पहले टेन्योर था 65 से 1965 से 1998, तो 88 तक था, सॉरी गलत लिखा हुआ है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं SP गॉडरेज, जो एक इम्पोर्टेंट इंसान है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और नेचुरल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए।
तो उन्होंने 1975 से 1999 तक 10 अवार्ड रिसीव किए फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। उसके बाद में MS स्वामीनाथन। तो हम स्वामीनाथन की जो बात करते हैं ना, उनकी उनकी रिपोर्ट्स और स्वामीनाथन की और उनकी जो कमेटीज वगैरह, तो इन्होंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जो अभी ये चल रहा है ना, जिसके लिए ये किसान वगैरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो फार्म लॉज आए हैं 3 नए, तो जिनसे किसानों को दिक्कत है, जो कि उनके हिसाब से सही नहीं है। तो ये उन्हीं की, MS स्वामीनाथन की ही रिपोर्ट थी जो कि गवर्नमेंट को लागू करनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। तो इन्होंने बहुत पहले एक रिपोर्ट दी थी, बहुत पहले सिफारिश दी थी अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि किसानों को ये चीजें मिलनी चाहिए। तो ही वॉज अ वेरी नॉन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। सो सो इनके इन्होंने एक MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का भी स्टैब्लिश किया चेन्नई में। फिर माधव गेडगिल, ये बहुत नॉन इकोलॉजिस्ट थे इंडिया में, ने काफी रिसर्च किया है। फिर MC मेहता, MC मेहता जाने जाते हैं इसके लिए मेहता कमेटी। तो इन्होंने क्या किया कि ये इन्वायरमेंट लॉयर थे जिन्होंने कि इन्वायरमेंट के लॉस के बारे में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, उसके बारे में काफी एक्टिविज्म किया है। तो इन्होंने काफी सारे PIL डाले फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। अब जैसे NGT बन गया है इंडिया में, तो वो भी इन्हीं लोगों के इनिशिएशन की वजह से। फिर अनिल अग्रवाल है जो कि जर्नलिस्ट है, जिन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में काफी लिखा है। फिर मेघा पाटकर है, जिनका नाम आपने सुना ही होगा। एज ऑफ शी इज नोन एज वन ऑफ द रूरल इंडियन चैंपियन, हैज सपोर्टेड द कॉज ऑफ द डाउन थ्रोन ट्राइबल पीपल है ये, इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने सुना होगा, उसमें भी मेधा पाटकर ने बहुत काम किया है। फिर सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि आपका चिपको आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया। सो इन्होंने एक इंटरनेशनली इसको नॉन किया। एक चिपको आंदोलन पहले देवी बिश्नोई ने किया था राजस्थान में 70s में। उसके बाद में अभी अभी के पीरियड में ये अभी चिपको मूवमेंट किया है इन्होंने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, तो जो कंजर्वेशन के लिए लोकल लोगों के साथ में। इसके बाद में बात करते हैं हम, जो कि इन्वायरमेंट के लिए इंटरनेशनल थिंकर्स कौन है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में। तो इंटरनेशनल थिंकर्स की जब हम बात करते हैं, तो ये तो सारे हमने बात की जो नेशनल हमारे इंडिया में जो नॉन इन्वायरमेंटलिस्ट है, इन्वायरमेंटल लॉयर्स है, जर्नलिस्ट है, जो भी लोग जिन्होंने इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम किया है। अब इसके बाद में है जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल थिंकर्स है। तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल थिंकर्स में हम बात करते हैं, चार्ल्स डार्विन है, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का लिखा, साइंटिस्ट जो थे। बाद में राल्फ एमरसन है, ठीक है। हैरी थॉरेन है, जिन्होंने वाइल्डनेस शुड बी प्रिजर्व्ड, इन्होंने 80s के अंदर ही ये लिख दिया था, 80-60 में। तो फिर जॉन मुइर है, उसके बाद में एल्डो लियोपोल्ड है, और उसके बाद में रिचर्ड कार्सन है। रिचर्ड कार्सन का आपने इन्होंने साइलेंट स्प्रिंग करके एक बुक लिखी थी, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। उसके अंदर जो मतलब पेस्टिसाइड्स जो हम यूज करते हैं, उसका नेचर, स्पीशीज पे और मैनकाइंड पे क्या इफेक्ट होता है, मतलब पहली बार रिचर्ड कार्सन ने ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट की और दुनिया के सामने लाए कि किस तरह से ये, मतलब पेस्टिसाइड हम यूज तो कर रहे हैं एग्रीकल्चर यूज के लिए, बट इसका क्या इफेक्ट हो रहा है जो अदर स्पीशीज है, अदर बर्ड्स है, उन पे और ह्यूमन पे। तो इट वाज लाइक वेरी फेमस बुक, और इसने एकदम से एक मार्केट में वो
बात अंदर आई कि हाँ मतलब पेस्टिसाइड्स आर रियली हार्मफुल। सो ये इन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये चीज बड़े रखी। तो ये लोग हैं जो इंटरनेशनली इन्वायरमेंट के लिए। बट जहाँ तक हमारे सिलेबस की बात है, हमें जो नेशनली जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जैसे सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपकी अमृता देवी बिश्नोई और मेघा पाटकर, इंदिरा गांधी, इन लोगों ने क्या क्या काम किए। एमसी मेहता जैसे कि वो वकील थे, उन्होंने इन्वायरमेंट लॉस के लिए काम किया। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। मेघा पाटकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो इन पे आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इंडियन वाले पे, इंडियन इंस्टीट्यूट्स और इंडियन अपना ये कौन कौन लोग थे। और एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज, मतलब कि कैसे एनवायरमेंट स्टडीज मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसके बारे में क्या क्या स्ट्रीम्स इसमें है, क्या इसकी वैल्यू है। तो इस तरह की चीजें आपके ज्यादा सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, ये दो चीजें। के बाद में जब हम बात करते हैं मतलब इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है वो, एक तो है कि हमें अवेयर होना है, उसके बाद में है एक्शन की बात कि हम किस तरह से छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्शन पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, सो कि अब जो 21st सेंचुरी है इसको हमें किस तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना है और किस तरह से डील करना है। तो जब 70 जो सेंचुरी थी वो थी एज ऑफ फेथ, उसके बाद में 80s थी एज ऑफ रीजनिंग, जब एकदम से साइंस थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए आपके, मतलब डार्विन के, न्यूटन के, इन सब की थ्योरीज आना स्टार्ट हुई। फिर 19 जो सेंचुरी थी वो एज ऑफ प्रोग्रेस थी, जैसे कि हमने जब मतलब ए प्रोग्रेस हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज आई, मतलब इंसान ने साइंस के सेक्टर में काफी प्रोग्रेस किया। लेकिन जब हमने प्रोग्रेस किया तो उसके साथ में बहुत सी स्ट्रेस, बहुत से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बनी तो इन्वायरमेंट में CO2 जाने लगी, तो उस तरह से ये सब चीजें आई। फिर उसके बाद में तो अब हमें डिसाइड करना है कि क्लाइमेट चेंज आया, इन्वायरमेंट में CO2 गई, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ी, तो क्लाइमेट चेंज हुआ, उससे पोल्यूशन बढ़ा, जो दिल्ली में बहुत ज्यादा हमारे प्रॉब्लम है, और भी कंट्रीज, इंडिया में बहुत से शहरों में प्रॉब्लम है, और भी एशियन कंट्रीज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो वी नीड टू डिसाइड कि अब जो हमारी 21st सेंचुरी है वो किस तरह की होगी, कि इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन की वजह से पैनिक होगा या फिर एज ऑफ पीस होगी। वी नीड टू डिसाइड लाइक कि हम किस तरह से पीस में रहें, शांति से रहें, और किस तरह नेचर के साथ में एक सस्टेनेबली रहें। सस्टेनेबल मतलब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है और सस्टेनेबल यूज का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को इस तरह से यूज कर रहे हैं या ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जब हम इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक तीनों तरह का हमारी चीजों का हम ध्यान रख रहे हैं। मतलब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी है लेकिन उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का कम यूटिलाइजेशन हो, पोल्यूशन कम हो, वो हम कैसे डिसाइड करें, और सोसाइटी का भला कैसे हो। जब इन्वायरमेंट सही रहेगा तभी ऑब्वियसली सोसाइटी उससे रिलेटेड है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, ये सब लाइक ये इन्वायरमेंटल स्टडीज का इंट्रोडक्शन था, और जो इन्वायरमेंट का मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है उसके बारे में हमने बात की। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि आप क्या पढ़ सकते हो इसके लिए। तो आपकी एक तो SOL के आपके पास में नोट्स रहेंगे, ठीक है, एक तो आपके पास में SOL के नोट्स रहेंगे, और जो कि आप पढ़ सकते हो वो सफिशिएंट है, उसमें काफी कुछ है। उसके बाद में एक ये बुक है इरेक भरूचा करके, है ना, इरेक भरूचा बुक, यू कैन राइट इट। इट इज, मतलब ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, सभी के लिए, UGC के बुक है, काफी अच्छी बुक है। तो अगर आप बुक से पढ़ना चाहे जो SOL के नोट्स है उनके अलावा, SOL का भी स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है,
और उसके अलावा ये बुक भी काफी अच्छी है, तो आप दोनों चीजें पढ़ सकते हो। राइटर है इरेक बरूचा और दिस इज इन्वायरमेंटल स्टडीज फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। इरेक बरूचा, ERACH BHARUCHA, ERACH BHARUCHA। तो ये दोनों चीजें काफी सफिशिएंट है। उसके अलावा SP शर्मा की बुक भी है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन की, वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये चीजें हैं, और बाकी नोट्स SOL के आई थिंक सफिशिएंट है। उसके अलावा ये स्लाइड्स भी मैं शेयर कर दूंगी, जो हमारा कॉमन शेयरिंग प्लेटफॉर्म होगा उस पे। और ये मेरे मेल आईडीज है दोनों, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं अभी। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दीज मेल आईडीज इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, कोई बुक वगैरह के बारे में आपको जानना हो, या मतलब कुछ भी इम्पोर्टेंट काम हो तो आप लिख सकते हैं इन मेल आईडीज पे मुझे। आई एम एक्सेसिबल ऑन दीज मेल आईडीज। And yeah, that's it. Thank you so much. And if you have any question, anything, I really don't know if you are able to, मतलब आप अगर अभी चैट में लिख सकते हैं कोई क्वेश्चन या कोई डाउट, तो आप लिख दीजिए। I can solve it, like we have 5 minutes, 5 more minutes, and उसके अलावा that is done. सो हमारा फर्स्ट यूनिट जो है, मैंने आपको ऐसे शॉर्ट में पढ़ा दिया क्योंकि SOL की क्लासेस इसी तरह से होंगी, वी हैव वेरी लेस टाइम। तो आपका फर्स्ट यूनिट आज हो गया है, जिसके बारे में हमने मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज के बारे में बात किया है और डेफिनेशन के बारे में बात किया। फिर अब इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इनके बारे में हम अगली क्लास में और ज्यादा डिटेल से बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो उसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में और ज्यादा डिटेल से अच्छे से बात करेंगे। उसमें पूरा एक इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन रहेगा। अभी ये डेफिनेशन वाला पार्ट था, अभी थोड़ा हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारी सेकेंड यूनिट जो नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि जो भी प्राकृतिक रिसोर्सेज है, इन्वायरमेंट मतलब ह्यूमन और प्राकृतिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग, ये दो पार्ट है इन्वायरमेंट के, और ह्यूमन बीइंग का उस पे इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे। तो हम अब नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिटेल में। अगर स्टूडेंट्स चैट एक्सेस कर सकते हैं तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं, कोई अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो। अदरवाइज आई विल शेयर दी स्लाइड्स, ये स्लाइड्स मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। एंड बाकी SOL के जो स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, एंड दिस बुक इरेक बरूचा, आप ये भी ले सकते हैं। इरेक बरूचा है, ERACH BHARUCHA, ये ऑथर है इरेक बरूचा, इन्वायरमेंटल स्टडीज की बुक है ये। सो ये सफिशिएंट है, ये और SOL का जो स्टडी मटेरियल मिलता है। सो दैट इज डन फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में नेचुरल रिसोर्सेस या प्राकृतिक संसाधन। तो उसमें हम और डिटेल में जानेंगे कि कौन से रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल हैं, जो कि यूज करने के बाद में दोबारा रीजनरेट हो सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इन्वायरमेंट को किस तरह से, मतलब हम इन रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज कर सकते हैं, किस टाइप के होते हैं, एक नेचुरल जो है, मतलब जो रिन्यूएबल है, एक है जो नॉन रिन्यूएबल है, और उसके अलावा किस तरह से हम इन रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम सेकेंड यूनिट में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। And you can write on these mail IDs if you want anything.
एनी नोट्स और एनी सजेशन, जो भी इम्पोर्टेंट चीज हो उसके बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो उसके अंदर कौन से रिसोर्सेज आते हैं? फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज। और फिर उसके बाद में एक इंडिविजुअल का नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन में एक इंडिविजुअली हमारा क्या रोल हो सकता है, और उसके बाद में हम इन रिसोर्सेज को कैसे सस्टेनेबली यूज कर सकते हैं एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेगा, यूनिट सेकेंड।